आपके lectures. Your lectures would continue in the similar fashion. Saturday, Sunday, and आपके आगे के chapters would cover, और आगे जाके फिर mock test और वो सारी चीजें आएंगी. Tomorrow, I think you should get your midterm report in terms of lecture कितने attend किए हैं, test कितने attend किए हैं, और test में performance क्या आया है. That's what C2 should get, both at students ID and parents ID. दो ये website पे भी check कर सकते हैं, but बच्चे करते नहीं, इसलिए हमको भेजना पड़ता है. तो we will do that tomorrow. Up till आज तक का जो भी test आपने लिखा. Okay, so can we go ahead? Let's start. So we are doing chapter 9. You only need to focus on, अभी books में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. It's a very very interesting chapter. मैं खुद को spotlight पे ले लेता हूँ, and I will keep myself in spotlight, but in the gallery view, so that आप लोगों को मैं दिखूं and मुझे आप सभी दिख रहे हो. So Sanvi Dwivedi, is this some repeat class that you're doing with me? Sanvi? No, repeat Yes, nahi. sir. You're doing this class for first time with me? No. हम chapter 9 कर रहे हैं. Have you done chapter 9 with me ever? नहीं ना? No. ठीक है. So we are doing chapter 9, and the best part about chapter 9 is it has some 4 concepts. 4 big concepts that we are talking about that chapter 9 will have. So वो मैं 4 कैसे बोल रहा हूँ? The first is more, and it's all statistics, huh? Statistics, survey, research, interpretation, mean, median, mode, sample or sample size, और ये सब करने वाले हैं, box and whisker plot. So if you will see that इसका जो basis है, mostly it is very very simple that you would have covered sometime in your 6th 7th standard. But the beauty lies here in the application. ये जिस तरह से SAT वाले questions पूछते हैं mean, median, mode पे, and I'll make you realize that very soon. You will see that this requires some very good understanding of these simple concepts like mean, median, mode. तो चलो इसी से चालू करते हैं. Enough of ज्ञान and announcements done. इसको मैं ऐड करता हूँ. अब आपको मेरा white board भी दिख रहा होगा, working space दिख रहा होगा. आप अपने हिसाब से, because I think working space is more important for you than my screen, तो आप बड़ा छोटा जैसे करना है कर लेना. So guys, we are doing chapter 9, and there's a lot of agenda. Like I said, there are 4 key things that we are going to cover today. Pehla wala, we'll talk about mean, median, mode. So let me start with Arushi Goswami. Arushi Goswami, how would you define mean? The mean is the sum of all numbers divided by total amount. So let's say I've got a data set, and that data set has capital N elements. Now, if I'm talking about a simple mean or a simple average, it basically means you add all elements where I goes from 1 to, let's say, आपने n बोला है तो n या small n तक, divided by total number of elements, तो ये एक average होता है, and that's what mean is, right? Arushi, where were you last time? Yes, sir. Where were you last Sunday? Sir, I was there. ये वाली आरुषि नहीं, वो दूसरी वाली आरुषि. हाँ सर, एक्चुअली मेरा कोचिंग का टेस्ट था, that's why I couldn't attend. तो मीडियन को डिफाइन करो. Sir, median is generally in a set of numbers the middle value. In a set of numbers, the middle value. Sir, which are arranged in ascending or descending order. This is the most important thing. है ना? Yaksh Trivedi, do you agree? Yes, sir. तो तुमने अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा बताया था, यक्ष त्रिवेदी? मतलब 12th के बाद. हाँ, 12th के बाद. सब बहुत सारा है. एक कोई बहुत सारे में से. Harvard. So when you say, let's say Harvard का median salary and Harvard का mean salary, these two could be different and they may convey different meanings.
So median is basically an arranged data set. पहले कंडीशन ये, इसको अरेंज करो जैसे आरुषि ने बोला, या तो असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो, बट प्लीज कोई ऑर्डर लेके आओ, और वो लाने के बाद मिडिल वैल्यू पे आ जाओ। ये जो भी मिडिल वैल्यू है ये आपको मीडियन देगा। तो अगर हार्वर्ड ये बोलता है कि मेरा मीडियन सैलरी इज लेट्स से 80K USD, बट मेरा मीन सैलरी इज, ये मैंने बहुत कम लिखा है हार्वर्ड के हिसाब से, बट लेट्स से 100,000 USD। तो यू नो कि अगर वो मीडियन 80K बोल रहा है, तो मतलब अगर उन बच्चों की सैलरीज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो मिडिल मोस्ट बच्चा है, जो 50th परसेंटाइल पे बच्चा है, 50th परसेंटाइल पे जो बच्चा है, उस बच्चे की ये सैलरी। एवरेज तो चेंज हो सकता है, एक लोअर सैलरी और एक बहुत हाई सैलरी से एवरेज मिसगाइड हो सकता है, वो एक स्टैटिस्टिक्स में वो एक छोटा सा मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है मीन में, बट मीडियन इज टॉकिंग अबाउट कि अरेंज करो और मिडिल वैल्यू निकालो। So let's say the number of values that I have are odd number of values. So let's say the values are 10, 14, मैं एक किसी ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, 18, 29, 1, 2, 3, 4 and 31. So अगर तो भी values are odd, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो you know कि 18 is the median because दो वैल्यू इधर हैं, इक्वल वैल्यूज इधर हैं, तो ये मेरा मीडियन हो गया। But the point is, what happens if it's even? Ayan Khatri, if number of entities are even, number of data points are even, तो median कैसे निकालेंगे? तो फिर जो हाफ ऑब्जर्वेशन है उसके नेक्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन का एवरेज मीडियन होता है। So I have 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 values. So if total values are 6, what is that you are talking about? So the center two values ka average is the mean. Yes. Is the median. Yes. So I know that you know how to find this. So what basically he's saying is कि number का average लो, तो एक n/2th value लेना है आपको, फिर आपको एक n/2 + 1th value लेना है, और इनका average निकालना है, तो median मिलेगा। तो which means 18 + 29, 18 + 29 will be 47, 47 का average will be 23.5, तो इसका median हो गया 23.5। Now this value may not be there in the data set, which is okay, but this becomes median. Odd है तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, but if it is even, remember after arranging, जैसा ये बोल रहा है middle and middle का next value, तो 6 है, 6 divided by 2/3 and 4th value का average will be your median. Right, Samruddhi? Does this make sense? Now, Jay Patel, how would you define mode? बोलो बेटे, जय प्लीज अनम्यूट। अरे ऋषिकेश भी आया है आज तो। गुड। जय क्या हुआ? बोलो, अनम्यूट तो करो। हमारे यहाँ ना एक स्टाफ हुआ करता था, ये दिस इज लाइक अभी भी है वो हमारी टीम में, एंड दिस इज लाइक ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। सो वी वर वर्किंग फ्रॉम होम एंड हम लोग ऐसे मीटिंग करते थे, तो ही वॉज वेरी गुड एट, अगर उसको कुछ काम दिया है तो वो नहीं किया है उसने, तो वो फ्रीज हो जाता था, ही वुड नॉट मूव एज इफ, फ्रीज हो गया। एक बार उसने अपनी सेटिंग चेंज की और वो कहीं और बैठा होगा घर में, वो फ्रीज तो हो गया, बट वो ये भूल गया कि वो जो पंखे का शेडो आता है वॉल पे, तो वो जब शेडो आता है तो वो शेडो ऐसे दिखता है, तो वो तो फ्रीज हो गया, बट वो शेडो तो चल रहा था। हमने उसको बोला कि अब कब तक बेवकूफ बनाओगे, तुम्हारा पंखा तो दिख रहा है उनको चलते हुए। तो उस दिन के बाद से उसने वो हैबिट छोड़ा है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट जय, मैं तो ऐसे मुझे याद आ गया कि ये बोल ही नहीं रहा है कुछ। चलो जय, व्हाट इज मोड? कहाँ गया वो? ही लेफ्ट? नहीं है, जय बोलो, अनम्यूट करो। नहीं, so this is like a lot of energy going into this. ऋषिकेश कहाँ है भाई? अभी दिखा था मुझे। ऋषिकेश, yes sir, any idea on mode? frequent value, Most occurring value.
सो वो वैल्यू इन योर डेटा सेट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार अकर होता है. अब द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू SAT, मोस्टली यू विल सी दे विल टॉक अबाउट यूनिमोडल डेटा सेट. इसका मतलब कोई बाइमोडल भी होता है और ट्राइमोडल भी होता है डेटा सेट, हाँ होता है. बट फॉर SAT पर्पस द स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ डेटा सेट जिसमें एक ही मोड हो सकता है. आपको मोस्ट यूनिमोडल डेटा सेट ही आएगा. बाय मॉडल 2 मोड या 3 मोड वाले डेटा सेट्स नहीं आएंगे अगर वो मोड रिलेटेड है. So if let's say we have something like this, because 3 is occurring most, this becomes the mode of data set. 6, 7, 8 नहीं होंगे, ये mode हो गया most occurring value. So mean, median, mode. ये clear हो गया guys? Can we go ahead? ये सब बहुत simple से हैं, so I can do them quickly. आगे बढ़ते हैं. Now let's come down to percentile concept. Can anyone here? Because आप में से कई लोग हैं ना, I know IIT की तैयारी कर रहे हो और IIT का जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में आता है, वो मार्क्स वार्क्स पे नहीं आता है. आपको जो स्कोर कार्ड देता है ना NTA, वो परसेंटाइल में देता है. फिर ऑल इंडिया रैंक, एडवांस के बाद ऑल इंडिया रैंक बनता है. बट मेंस के जो दोनों अटेम्प्ट होंगे, अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं तो परसेंटाइल में आएंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल? मेक श्योर आपने सबसे बड़ा स्क्रीन मतलब वर्किंग स्पेस का कर रखा हो और आपको सब दिख रहा हो. नहीं दिख रहा है तो मुझे बताना. परसेंटाइल का क्या मतलब है? परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल. Anyone? How many test takers with you are below you or above you? Okay, ठीक है. मतलब I'll say यक्ष you are not wrong. थोड़ा सा इसको टेक्निकली डिफाइन करते हैं, बट वो सही बोल रहा है. वो बोल रहा है कि भाई मान लीजिए सर मेरा रैंक IIT में या किसी भी एग्जाम में, नॉट नेसेसरली IIT में, आपके SAT स्कोर कार्ड में भी परसेंटाइल रैंक आएगा. तो दो उस रैंक का उतना वैल्यू नहीं होता है, बट हाउ यू आई मीन व्हाट रैंक यू गेट, उससे वैल्यू जनरेट होगी. 99.9 परसेंटाइल मान लो आपका ये आया. तो व्हाट ही इज सेइंग इज, इसका मतलब ये है कि ऑफ ऑल द टेस्ट टेकर्स, अगर X टेस्ट टेकर्स थे तो ये X टेस्ट टेकर्स में 0.1 परसेंटेज ऑफ दिस टेस्ट टेकर यूनिवर्स मेरे ऊपर है, 99.9 परसेंटेज मेरे से नीचे. आयान वारेकर बोलो, ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर. ठीक है. सो अब इसको अगर टेक्निकली डिफाइन करें, बेसिकली गाइस, परसेंटाइल मींस दैट लेट्स से व्हाटएवर डेटाबेस आई हैव, आफ्टर आई हैव अरेंज्ड द डेटाबेस, आई डिवाइड द एंटायर डेटाबेस इनटू इक्वल पार्ट्स. हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? So I divide them into, let's say, 100 equal parts, where each part would represent 1%. मैंने अरेंज किया डेटा को और मैंने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया. परसेंट है पर 100 पार्ट्स में डिवाइड किया. Each part has equal weightage, equal portion of data, I should say. Equal weightage नहीं, equal portion of data, and that portion is 1%. So let's say if we are talking about, जैसा कि IIT famous है, let's say there were 1 million aspirants writing SAT exam, SAT, IIT JEE exam. अगर 1 million people wrote this year, जबकि इस साल तो 11 लाख बच्चों ने लिखा था, but अभी इसको 10 लाख मान लेते हैं. So then if I arrange them in their score का order with whatever tie break rules I have, this top percentile out here, 1% of data, this will contain how many students? बोलो भैया. 10,000 स्टूडेंट. तो मतलब अगर आपको 99 परसेंटाइल आ जाएगा जेई मेंस में, तो आपके ऊपर 10,000 बच्चे हैं, आपके नीचे 9,90,000 स्टूडेंट्स हैं. एंड लेट मी टेल यू, IITs में सीट जो है वो 8,000 है. मतलब 99 परसेंटाइल लाके भी बहुत कुछ IITs में हो जाएगा. 8,000 मैंने जनरल कैटेगरी का बोला है, तो दिक्कत है. तो एनीवे, अभी तो ये IIT का सेशन नहीं है. तो दिस इज व्हाट परसेंटाइल मींस. ये क्लियर हो गया? कैन आई गो अहेड? इन SAT, a percentile may not be directly part of your syllabus, but understanding of percentile becomes important for you
to answer SAT questions which are more based on quartile. क्वार्टाइल पे आएगा. सिमिलर लॉजिक लगाओ परसेंटाइल का. पूरा मेरे पास कोई डेटाबेस है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं भाई, वही लॉजिक लगाओ. हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? Sir, अगर क्वार्टाइल 25. 45 इक्वल पार्ट्स, Sir, 25. 25 equal parts. Quartile, quarter, quadrant. The 4. 4 हुआ ना रेवती? 4 पार्ट्स. एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं. अगर एक साल के 4 क्वार्टर लेंगे तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, है ना? तो Sir, I was thinking out of 100, so. हाँ, 100 ही मान लो ना. डेटा, ये पूरा डेटा 100% है. ये पूरा डेटा आपने मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है. पूरा डेटा 100% है. मैंने पूछा कितने पार्ट में डिवाइड होगा, कितने इक्वल पार्ट में. सो आंसर इज 4 इक्वल पार्ट्स. अज्यूम देम टू बी 4 इक्वल पार्ट्स. आपने क्या आंसर दिया मुझे अब बताता हूं मैं. ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स, आफ्टर यू हैव अरेंज्ड द डेटा, 25% ऑफ द डेटा. तो ये मेरा टॉप क्वार्टाइल हो गया, ये मेरा सेकंड क्वार्टाइल हो गया बोलने के लिए. इनका कुछ टेक्निकल नाम है, अब इसमें डिटेल में जाएंगे क्योंकि परसेंटाइल एसएटी में डायरेक्टली नहीं आता है. ये मेरा सेकंड क्वार्टाइल हो गया, ये मेरा थर्ड क्वार्टाइल हो गया, ये मेरा बॉटम या फोर्थ क्वार्टाइल हो गया. एंड ईच क्वार्टाइल हैज 25% ऑफ डेटा. बोलिए, ये समझ में आ गया? ये आ गया ना, ये सब समझ में? अब हमें इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर. तो इन क्या बात कर रहे थे हम? So in statistics, guys, with respect to quartile concept, this level is called Q1. Q1 वो लेवल है जिसके नीचे कितना डेटा है? कितना डेटा है Q1 के नीचे? कोई भी बोलो. आरव, श्रेयस, 25%. कितना? 25%. परफेक्ट. और इसके ऊपर 75% डेटा, और इस लेवल को बोलते हैं Q3. तो henceforth अब आपको Q1 और Q3 का मतलब पता होना चाहिए. Q1 is that part in your data set जिसके नीचे अरेंज डेटा सेट, मैं बार बार अरेंज नहीं बोलूंगा. Q1 के नीचे 25% डेटा है, Q1 के ऊपर 75%. Q3 is that part in your data set guys जिसके ऊपर 25% डेटा है, जिसके नीचे 75% डेटा. ये सब समझ में आया? अब आप बोलोगे इसमें Q2 नहीं दिख रहा है. हाँ, नहीं दिख रहा है. Q0 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. Q4 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है. सिर्फ Q1 Q3 पता होना चाहिए ना. नेक्स्ट थिंग, ये सब आगे क्योंकि ये एसएटी में है तो ये पढ़ना जरूरी है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज. रेंज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. दिस इज डिफाइंड एज Q3 minus Q1 and hence Q3 Q1 को जानना जरूरी है. ठीक है? Can we go ahead? इंटर क्वार्टाइल रेंज का ये फॉर्मूला होता है Q3 minus Q1. दिस इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज. ये और क्या होता है, कैसे होता है, आई विल एक्सप्लेन. तो ये क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज Q4, Q2, Q0. बट नाउ लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, और जिसको भी अगर ये क्लासरूम होता तो आई वुड हैव ऑफर्ड 5 स्टार. तो अभी वर्चुअल 5 स्टार होगा इस क्वेश्चन के लिए. जब भी हम मिलेंगे प्लीज डिमांड फ्रॉम मी. व्हाट डू यू थिंक इज दिस? The median. The median. खत्री को 5 स्टार मिल जाता है. आंसर सभी का करेक्ट है जिन्होंने भी आंसर दिया, बट ही वाज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड. यस, एब्सोल्युटली. दिस इज वेरी गुड गाइस. आई थिंक वन ऑफ द देसाई सिस्टर्स आंसर्ड इट, है ना? कौन सी देसाई थी वो? जो भी था, तो और भी एक आध आंसर मुझे सुनाई दिया. सो दिस इज मीडियन. ये ध्यान रखिएगा प्लीज. आपके डेटा सेट में ये कुछ ऐसा आने वाला है. ऐसा अभी मैं इसको आगे जब बढ़ाऊंगा तो ये जो Q2 है, बेसिकली Q2 नहीं होता है कुछ भी. ये जो बीच वाली लाइन है, क्यों मीडियन है? क्योंकि 50% डेटा ऊपर है, 50% डेटा नीचे है, तो होना ही चाहिए मीडियन. लॉजिकल. ऋषिकेश बोलो, ये सब ठीक है? तनुष रेड्डी? Yes, sir.
ओके, I'll go ahead. आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने बनाया, ये पूरा वर्टिकली बनाया, लेट मी मेक इट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली जब मेरी स्टोरी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले आधे। तो लेट्स से ये क्वार्टाइल वाले कॉन्सेप्ट को लेटा दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेके आ गया, ऐसे हॉरिजॉन्टली ले कर दिया, प्लेन तो वही है, ले कर दिया, और इसके 4 हिस्से होने चाहिए, तो ठीक है, वो 4 हिस्से मैं बताता हूँ कैसे। एंड लेट्स से इसकी 2 मूछें बना दी हमने, विस्कर 1 और ये इसकी दूसरी मूछ है विस्कर 2। ठीक है, इसके नीचे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर। अब दिस काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। हमने एक स्कैटर प्लॉट देखा था, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डेटा, टूल टू रिप्रेजेंट डेटा। दिस इज अनदर टूल टू रिप्रेजेंट इट, which has fundamental layer पे quartile as which has quartile at its fundamental level. So वो उसके ऊपर ही based है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस एज, लेफ्ट हैंड पे जो एज होता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का, दिस इज रिप्रेजेंटिंग Q1। ये वाला जो राइट हैंड पे एज है, एज मैं विस्कर पे नहीं पहुंचा हूं, इसको बोलते हैं Q3। ठीक है, ये इसका राइट मोस्ट विस्कर है, ये इसका लेफ्ट मोस्ट विस्कर है। लेट्स से किसी एक को ले लेते हैं, लेट्स से आई सी कैलिब। कैलिब, यू हैव नॉट डन दिस कॉन्सेप्ट विद मी अर्लियर। देखो, हमेशा की तरह आज भी तुम्हारी आवाज ना मुझे आ नहीं रही है, तो मैं कैलिब का एग्जांपल लेता हूं। कैलिब कंटिन्यू, तो आप मेरे साथ बने रहो। Now let's say Caleb has a farm and Caleb grows what? Pumpkins, watermelons on his farm. And Caleb says that the watermelons that I grow, let's say there are thousands in number, I don't know kitne, but he says that watermelons that I grow, highest weight, most heaviest watermelon that he produces on his farm would be something like, ये ह्यूज है, 25 किलो का। अगर आप कभी वाटरमेलन खरीदने गए हैं तो आप समझ पाएंगे कि मैं इनसेन बातें कर रहा हूं। बट लेट्स से, या एप्पल का नया ऐड देखा है आप लोगों ने, एक आदमी ट्रैक्टर पे जा रहा है, नेविगेशन यूज कर रहा है, और पीछे क्या पड़ा है उसके ट्रॉली पे, देखा है? टीवी नहीं देखते हैं आप लोग, एसएटी के लिए तैयारी करते रहते। तो जो एप्पल का नया ऐड है उसमें आप देखोगे इनसेन साइज का पंपकिन है, तो लेट्स से वैसा ही कुछ है। तो ये एप्पल आईफोन, तो ये 25 kg का हाईएस्ट हेवीएस्ट वाटरमेलन ये अपने फार्म पे लेके आता है, प्रोड्यूस करता है, और फिर लेट्स से ये कुछ 20 किलो का लेवल है। फिर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है लेट्स से 10, लेट्स से हियर इट इज 13, लेट्स से द लाइटेस्ट वेट। मैं नंबर लाइन पे बना रहा हूँ, तो आई हैव टू फॉलो द लॉजिक ऑफ नंबर लाइन कि लेफ्ट से राइट में नंबर्स इंक्रीज होने चाहिए। सो लेट्स से वो बोलता है कि भाई 3 kg का वाटरमेलन है on his farm, and all these are kgs, weight of one given watermelon, 1 unit of watermelon. So ये ऐसे दिया हुआ है। Now if you look at this, this is the complete box and whisker plot. मैंने सारा डेटा भर दिया है इस एग्जाम्पल में। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बट अगर आप ये समझेंगे, दिस इज द टॉप मोस्ट परसेंटाइल, या आईआईटी मेंस का टॉपर है ये, 100 परसेंटाइल वाला बच्चा है ये। अब इस केस में ये बच्चा नहीं है, ये वाटरमेलन है, राइट? ये वो बच्चा है जो एकदम नीचे है, जिसके पेरेंट्स के और नेबर्स के और फैमिली के फोर्स पे ह्यूमैनिटीज करना था, मगर इतना एक्सपेक्टेशन डाल दिया, वो आईआईटी में बैठ गया। ये वो बच्चा है, ठीक है? तो दिस इज द एंटायर बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। ये समझ में आ गया? अब मैं जिसको प्रॉम्प्ट करूंगा वो मुझे आंसर करेगा। सो सानवी द्विवेदी, वी स्टार्ट विथ यू, प्लीज अनम्यूट। व्हाई वर यू हाइडिंग फेस? चलो, हाँ ठीक है, तो बताओ, जो कैलिब का फार्म है उस पे व्हाट इज द मीडियन वेट ऑफ वाटरमेलन्स?
13 kg. Very good. The median weight of watermelon growing on Caleb's farm is 13 kg. Here it is. Righto? Ayan Varekar, please unmute. Yes, sir. What is the average weight of watermelons growing on Caleb's farm? 13. 30? 13. 13. हाँ 30 तो डेटा सेट में नहीं है तो मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ 30. Yash Trivedi, do you agree with Ayan Varekar? If no, I want to know the reason. If okay, then no problems. Bolo Yash. Average weight of watermelon growing on Caleb's farm. 13 kg is what Ayan Varekar says. Bolo Yaksh, क्या लगता है? Agree, disagree? So if we take average of all the data, it is not 13, I think. ठीक है. So more or less tentatively you agree, है ना? बहुत ज्यादा रीजन नहीं है तुम्हारे पास डिसएग्रीमेंट का. That's what you're saying कि शायद यही है सर, है ना? यक्ष? And but so You are confused. So let me pick somebody else. किससे मैंने आज बात नहीं की? Shreyas Jain, what do you say? Sir, Average weight. हाँ? 14. 14? Yes. Okay. तो अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया. आरव आहूजा, Yes, sir. which of the two is the average weight of watermelons on our friend's farm? 13. Caleb, तुम मुझे टाइप करके भेज सकते हो. Rather तुम type to everyone, Caleb, so that everybody sees. What do you say, Caleb? $13. Okay. Anybody who disagrees? So, I disagree. so the formula was Q3 minus Q1, right? Q3 minus Q1. Formula was that for something. No, for average only, I think. No. I never said that. नहीं, मैंने recording But I think that's how we're gonna take it out. नहीं. Q3 minus Q1 क्या है ये बताओ. बोलो सानवी. You only tell me. Oh my God. Q3 minus Q1 क्या है? Miss Zade, बोलो. Sir, it's interquartile range. अभी तो इंटरक्वार्टाइल की कुछ भी बात नहीं की है मैंने. क्वेश्चन है नहीं. और इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू एवरेज, ये कभी बोला नहीं गया है. नहीं सर, मैं Q3 minus Q1 का बोल रही हूँ कि हाँ, that is वो- interquartile range. Yes. That is interquartile and it has nothing to do with average. सिर्फ एक अयान खत्री मुझे दिख रहा है जो बोल रहा है कि Sir, नहीं. I also disagree. हाँ 13 बताइए minus- मैडम बताइए. Sir, I think सबका average निकालना होगा. It should be 14.5. ओके. अच्छा, एक थर्ड आंसर भी आ गया. 14.5. अयान खत्री, now let's come to you. Sir, we can't remove the average until we know how many values are there. There are just 5 values given. You can't remove the average from this. You can just get the median value. We can't get the average value from the data. Okay. Yaksh, Caleb, Ayan Varekar, Arushi. He's saying, you never told us how many watermelons. You said thousands में है watermelon. कितने watermelon है? 25 किलो के कितने watermelon है? इसके बीच में कितने watermelon है? 20 के कितने हैं? 13 के कितने हैं? मुझे ये पता है that of all the watermelons I grow, 25% watermelons are between above 20 and less than. ये balance 25% है. Units, हाँ? ये बैलेंस वाटरमेलन्स है 25%. और ये मेरे आखिरी के बचे हुए 25% वाटरमेलन्स है. हाउ मेनी आर देयर? एंड ईच वाटरमेलन का वेट, तो ईच वाटरमेलन का वेट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाटरमेलन. डिनोमिनेटर पता ही नहीं. सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द गिवन डेटा. ये प्लीज समझिए, ये एक एसएटी का गूगली क्वेश्चन आता है ऑन बॉक्स एंड मिस कर दो कि भैया मीन बता दो आप या मोड बता दो.
इस डेटा सेट में नहीं बता सकते, यू नीड मोर इंफॉर्मेशन। ये क्लियर हो गया? यक्ष बोलो, क्यों कंफ्यूज हुए थे तुम? हाँ सर, डेटा में थोड़ा हो गया था। ठीक है, अयान क्लियर? आरुषि? दोनों आरुषि? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम डेटा सेट। श्रेयस जैन प्लीज अनम्यूट। एंड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, आंसर आपको ट्रू में या फॉल्स में देना है। ओके, सो बेटे क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज रादर, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट। बताना ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं वो डेटा को देख के स्टेटमेंट साथ साथ में बना रहा हूं। एट लीस्ट 25% of watermelons, at least 25% of watermelons on Caleb's farm weigh more than 10 kg. At least 25% of watermelons on Caleb's farm weigh more than 10 Sir, kg. true. आरव बोलो, अनम्यूट Yes, करो। नहीं सुना ना तुमने स्टेटमेंट? No, sir. हाँ, No, sir. at least you are honest. So answer is true. True है ना ये? Because 75% weigh more than 10 kg. ये देखिए, मैंने बोला at least 25%। हाँ, ये तो सही, right? Now let me ask question to Revati. Revati Desai. Again, statement true and false. Revati, the statement is at most 50% of watermelons on Caleb's farm weigh less than 13 kg. At most, yeah, at most 50% Yes, sir, true. weigh less than, ज्यादा से ज्यादा 50% ही वाटरमेलन है कैलेब के फार्म पे जो 13 kg से कम है। राइट गाइस, ये सब समझ में आ गया? तो आप देखेंगे हमने क्या क्या कर लिया है। आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक रिविजन। हमने मीन, मीडियन, मोड किया, फिर हम क्वार्टाइल में चले गए। क्वार्टाइल में करने के बाद हमने इसको लिंक कर दिया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एक क्वेश्चन, 5 अटेम्प्ट होने लग गए, 5 या 6 अटेम्प्ट हो गए अब एसएटी के। आप ये मान के चलो 5-6 में से 3-4 में बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आ जाता है। सो इट्स नॉट दैट इट कम्स इन एवरी अटेम्प्ट, बट एनी अटेम्प्ट दैट इट कम्स, इट्स अ वेरी गुड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। सो लेट मी नाउ bring your attention to the book that you're carrying, and I want you to solve a specific question, which is question number 35 on your book. Please solve and send me your answers individually, privately in the chat box. 1 minute. Question number 35. Sir, which question? क्वेश्चन नंबर 35 बुक में देखो, ये एक जिम वाला क्वेश्चन है। चेन्स विले समथिंग लाइक दिस, जिम है वहां पे, कुछ जिम मेंबर्स वाला क्वेश्चन है। 35। अच्छा, आंसर्स आने लगे। ओके, So क्या page number, पेज नंबर? क्वेश्चन नंबर तो बता दिया ना, सानवी बुक है? कोई बता दो भाई, पेज नंबर से हेल्प करो। आई डोंट हैव बुक। 114. अयान करेक्ट। यस आरुषि करेक्ट। करेक्ट जय, गुड। रेवती क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वापस करो, समय है। कृष्णा करेक्ट। श्रेयस करेक्ट। यस गुड। अक्षता, अच्छा आज अक्षता से तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, तुम रेडी रहना बस, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई गेट। आरव करेक्ट। रेवती अब सही है। यू रियलाइज योर मिस्टेक रेवती? करेक्ट। समृद्धि, यू वर नॉट देयर इन माय लास्ट क्लास। एंड आरुषि गोस्वामी ने सबको आंसर भेज दिया है
और वो आंसर सही है. Yes, Yaksh. So I go back. मुझे बताओ, who would want me to solve this particular question? If you want me to solve this, we do this. Otherwise, I go back solving some other problems. Anyone who would want me to discuss this? Who? ऋषिकेश, तुम चाहते हो मैं इसको करूं? Yes, sir. ठीक है, चलो, let's do this. The box plot, अच्छा, ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को इस नाम से भी बुलाते हैं और एक और नाम है इसका, वो भी मैं बताता हूँ. The box plot suggests that about 25% of gyms in Sainsville have more than what number of gym members? 25% having more than what number? तो बेसिकली ये मेरा डेटा है जो कि Q3 है, ये मेरा टॉप क्वार्टाइल है यहाँ पे. This is top 25%. So 25% of gyms have more than what number of gym members? 68, 70, 72, 74. अगर आप ये देखोगे तो 25% of gyms have more than 70 members. आंसर है 70. अब जैसे एक आंसर गलत जो आया था वो लेने की कोशिश करते हैं. एक आंसर आया था 56. तो अगर आप ये देखोगे तो 25% of gyms have more than what number? अगर क्वेश्चन होता 25% of gyms have less than what number, तो ये आंसर ठीक होता. ऐसे नहीं. 64 आंसर कब होता? जब वो पूछते कि भाई मीडियन नंबर क्या है या 50% वाला कुछ वो पूछते थे. तो आंसर is this thing clear, guys? Yes, sir. So I go back to my sheet and we come down to closing this entire thing with IQR. अब IQR पे मैं वापस आता हूँ. मैंने आपको इसे बता के छोड़ दिया. तो आपको याद होगा in my last class, and there were not many students there, कुछ absent थे. We talked about a concept called outliers. और मैंने बोला था next class में और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. और हमने एक पर्सनैलिटी लिया था real worlds and we said he is perfect example of outlier. Who did we speak about? बोलो भाई. Elon Musk. तो ये जो Elon Musk है, ये सोशियोलॉजी में मैं बोल सकता हूँ कि ये आउटलायर है. सोसाइटी स्टडी में या सोशल साइंसेस. वैसे स्टैटिस्टिक भी सोशल साइंस का पार्ट है. आउटलायर स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? आउटलायर उस डेटा पॉइंट को बोलते हैं जो आपके गिवन सेट से एकदम अलग बिहेव करता है. It doesn't exhibit the similar traits, जो थोड़ा अलग बिहेव करे. गुड और बैड की बात नहीं कर रहा हूं मैं. So let's say Caleb says, sir ये सब तो ठीक है, but this year I had क्या बोलते हैं, I had a good harvest and somehow मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश की है और मेरे फार्म पे ना एक कितना 80 किलो का एक डेटा और है. एक पर्टिकुलर वाटरमेलन 80 किलो का. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मेरे फार्म पे एक छोटा सा बट फुल्ली राइप्ड 100 ग्राम्स का, या ऐसे लिखो ना इसको, 0.1 kg का वाटरमेलन है. तो मेरे पास ऐसे 2 वाटरमेलन है जो इस डेटा सेट से अभी तक के सारे ट्रेंड से अलग बिहेव कर रहे हैं. तो क्या ये आउटलायर्स हैं? अब उसको स्टैटिस्टिकली चेक करते हैं. तो ये बस लास्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको एसएटी के लिए रिक्वायर्ड है. तो गाइस उसमें IQR रूल स्टैटिस्टिक्स सेज फाइंड IQR नंबर 1 which is Q3 minus Q1. एंड आउटलायर का रूल होता है if not stated find 1.5 times IQR whatever is this value. और आपको अगर आउटलायर हायर एंड पे ढूंढना है, हायर एंड पे अगर आपको आउटलायर ढूंढना है, so this will be equal to Q3 plus 1.5 times IQR. Any value above this would be an outlier in data set. अगर आपको लोअर एंड पे आउटलायर ढूंढना है तो फिर Q1 minus 1.5 times, क्या लिखा है मैंने?
IQ3, sorry, IQR. 1.5 times IQR. Any value देखो greater than this higher end पे outlier है. Any value less than this lower end पे outlier है. ठीक है? आरव, अक्षता चले, मेकिंग सेंस, ये समझ में आ रहा है जो मैं सब बोल रहा हूँ? Yes, sir. मालूम नहीं सानवी ये पॉजिटिव अफर्मेटिव नॉट है कि नेगेटिव नॉट है? Positive. पॉजिटिव. तो लेट्स सी, अब IQR निकालते हैं. कैलिब नहीं, ठीक है, तो कैलिब का तो फॉर्म ही है, उससे तो मेहनत नहीं करा सकते, मैं ही करता हूँ. तो ये Q3 20 माइनस 10 हो गया 10, इसका 1.5 टाइम्स हो गया 15. हायर एंड का आउटलायर हो जाएगा Q3 विच इज 20 प्लस 15. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 35 on this data set will be an outlier watermelon. Wait, and lower end पे Q1 is 10. 10 minus कितना? 15. Oh, you're not able to hear me? Am I not audible? Am I audible? Yes, sir, you're audible. जय बेटे, please look at आपके घर पे आप कनेक्शन देखो. And अनुष्का मैडम, if you can hear me, अगर उसको बैंडविड्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी और है तो जय पटेल को अभी के लिए टिल द टाइम आई ब्रेक आप बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट के लिए आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हो एंड प्लीज लिसन मी आउट. सुनना ज्यादा जरूरी है अभी. सॉरी, मैं कहाँ था? हाँ, सो Q1 माइनस 15 विल बी माइनस 5 kg. तो इसका ये मतलब है फॉर ऑल थियोरेटिकल पर्पस लोअर एंड पे कोई भी आउटलायर होगा ही नहीं इसके फॉर्म पे. हायर एंड पे हो सकता है जो कि वो है 80 kg वाला. ये सब आ गया? यश बोलो, ये सब क्लियर है? Yes, sir. बस ये है कंप्लीट क्वार्टाइल कॉन्सेप्ट का स्कोप विथ रिस्पेक्ट टू कैसे हाईएस्ट आपको ये लेवल तक आउटलायर ढूंढने तक का क्वेश्चंस आ सकते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन और रेंज becomes part of this, but ये यहां तक हमको समझ में आता है. Now I'll request you to solve question number 37 on your 37, 1 full minute, 37, and send your answers privately only. Correct, Jay. Rushikesh, correct. Yes, Revati, correct. Yaksh, correct. Arav and Ayan Khatri, correct. Sanvi, Arushi, correct, correct. Correct, correct, Ayan Varikar. Shreya Jain, correct. Chali, let's finish it off. Who am I waiting for? Caleb, I am waiting for your answer. Akshita, आपका आंसर नहीं आया और कौन बचा? बस सबका आ गया. कृष्णा का आंसर नहीं आया. कृष्णा का है? सर मैंने भेज दिया. अच्छा, आता ही होगा. So correct answer is option B. No, so Caleb, I was asking, did you get the concept number 1? An answer for this question is option B. So anybody who would want me to discuss this, let's do that. Otherwise, I'll go ahead because I have not seen anybody getting it wrong, at least in the chat box. So please आप unmute करके मुझे बोलो कि ये solve करना है, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Shall we? तो
अब आप लोगों के पास ना दो ऑप्शंस है, मैं ये वर्किंग स्पेस रखाता हूँ, एंड यू टेल मी हाउ यू वांट मी टू प्रोसीड. So I have covered largely two important concepts, 2 या 3 बोल लो, more than 2. अब एक अप्रोच ये है कि एक और कॉन्सेप्ट बचता है विच इज अबाउट सर्वे एंड सैंपल साइज एंड इंटरप्रिटेशन, और क्वेश्चंस बचते हैं मीन मीडियन मोड पे. तो दो अप्रोच है, एक हम मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस करें एंड टुवर्ड्स द एंड हम वो कॉन्सेप्ट करें. The second approach is we do the concept first और फिर एक साथ सारे सर्वे इंटरप्रिटेशन, सर्वे वाले क्वेश्चन, सैंपल साइज वाले क्वेश्चन एंड मीन मीडियन मोड एक साथ लें. बोलो what is that you guys will prefer? I'll do accordingly. The concept first. Is that unanimous voice? No, it's Sandeep. I know, but is Sanvi's voice unanimous? ठीक है, तो आप लोगों का भी क्वेश्चन और आप मुझे और झेल सकते हो विथ थियरी पार्ट. तो चलो लेट्स. अनुष्का, कैन यू हियर मी प्लीज? सुन सकती हो क्या मुझे? सर सुन रही हूँ. मैं बोल रहा हूँ ये जय पटेल को जब तक हम ब्रेक पे नहीं जाते तब तक वीडियो बंद करके क्लास में रहने दो. ठीक है. ठीक है. सो because you guys have shown some capacity, let me throw some punch. So मैं वापस स्पॉटलाइट पे आता हूँ. So guys, like I always do, I take some small छोटा सा केस, उससे मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ. So let's say okay, so let's say one of you is a researcher and I'll pick one. ऋषिकेश को मैं लेता हूँ. वो बोल रहा है कि मैं एक रिसर्च करता हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग हो, और जब मैं सिटी के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ तो ये रिसर्च बता सकूं कि मैंने एक रिसर्च किया और एक वाइट पेपर या जर्नल में पब्लिश किया है, तो उससे मुझे क्रेडिट मिलेगा. तो मैं बोलता हूँ अच्छी बात है. व्हाट ही डज, ही सेज दैट लेट अस अज्यूम he goes to a place. Name of this place is No Name Island. इसका नाम है No Name Island. जैसे अनामिका होता है ना लड़कियों का नाम, वैसे ही इस आइलैंड का नाम है नो नेम. अब वो इस आइलैंड पे जाता है एंड ही सेज दैट फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही फाइंड्स आउट कि यहाँ पे 2 लाख डॉक्टर्स हैं registered. And he wants to find out what is the average fee charged by these doctors for first visit. He wants to find out what is the average fees charged by doctors for the first time visit. कोई एलिमेंट हुआ, आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं ये सारे डॉक्टर्स MBBS हैं और ये एक जैसी सी प्रोफाइल. He says, I cannot visit all 2 lakh doctors. मुझे IIT का प्रिपेयर करना है, SAT का करना है. सर्वे करते करते पता चलेगा कि जितने टाइम में मैं अंडर ग्रेजुएशन करूंगा उतने टाइम में सर्वे खत्म होगा. So I cannot do that. So he cannot talk to the entire population. So this becomes population size for him. But statistics says if you have to understand population parameter, so this becomes parameter of study, जो वेरिएबल है बेसिकली. ये वेरिएबल को स्टडी करना है इसका, तो ये हो गया पैरामीटर फॉर स्टडी. ये पढ़ना है उसको, ये स्टडी करना है. So he says, what I will do, sir, I'll create a sample. I cannot visit 2 lakh, so I will at random, very important, at random, I will pick, let's say, 1,000 doctors. I'll pick 1,000 doctors and I will study and ask them what is the average fee that you charge first time visitors को. This becomes sample size. ये sample size हो गया. Okay. उसने रैंडम क्यों लिया? ताकि कोई बायस नहीं आना चाहिए. रैंडमली बात कर रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस हो सकता है डॉक्टर का, और एक्सपीरियंस डॉक्टर ज्यादा चार्ज कर सकता है, नया कम एक्सपीरियंस वाला कम कर सकता है.
किसी की कोई रेपुटेशन हो सकती है, किसी का प्रॉक्टो पे, मैं सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ, हायर स्टार रेटिंग हो सकती है एंड सो ऑन, गूगल पे अलग रेटिंग्स हो सकती हैं सो ऑन। तो उसने एट रैंडम डिसाइड किया एंड लेट्स से उसने वो रैंडम ये वाला एरिया लिया, 1000 डॉक्टर्स को इंटरव्यू किया, जा जाके पूछा और फाइंड किया दैट व्हाट इज देयर एवरेज फीस फॉर फर्स्ट। तो यही सैंपल पैरामीटर हो गया, यही पैरामीटर, इसको सैंपल पैरामीटर भी बोलते हैं, जो वो स्टडी कर रहा है, सैंपल पैरामीटर। अब ये साइड है, लेट्स से आफ्टर ही हैज डन हिज स्टडी, ही फाइंड्स आउट दैट द वैल्यू ऑफ this parameter comes out to rupees 2000. This is the average fees for first time visit. बहुत ही संपन्न prosperous island है ये, तो यहाँ पे फीस बहुत हाई है फर्स्ट टाइम विजिट के लिए. So he says that it is 2000 rupees. Okay, that's what he says. Now, if you understand, this becomes value of this sample parameter for the study that he took. But he knows कि हो सकता है कुछ बायसनेस आ जाए. जब मैं डॉक्टर से पूछने गया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ इनकरेक्ट डेटा दिया. डॉक्टर ने सोचा कम फीस मतलब आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर, कुछ बढ़ा दिया होगा, किसी ने कुछ थोड़ा कम किया होगा, किसी ने रिसर्च में उतने enthusiastically पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, एंड देयर कुड बी सम बायसनेस. So he says, because he is publishing this report and he wants to be technically right, he says margin of error. Basically हम बात कर रहे हैं MOE का. He says margin of error in my study is plus minus 200 rupees, which means कि उसने जो स्टडी किया है, अगर मैं आपको नंबर लाइन पे समझाऊं, 2000 एवरेज फीस आ रही है, बट दिस कुड बी बिटवीन 1800 to 2200. वो अपने स्टडी में एक मार्जिन ऑफ एरर रिपोर्ट करता है, वो परसेंटेज में हो सकता है, वो वैल्यू टर्म्स में हो सकता है, इसने वैल्यू टर्म में कर दिया. तो नंबर लाइन पे ऋषिकेश सेज दैट दिस इज द एवरेज फीस इन दिस. नाउ व्हेन ही सेज दैट I say, अच्छा तो ये तुमने मार्जिन ऑफ एरर से बताया, तो he says yes. So I ask him, do you know what is this called? He says yes. This is called as confidence interval. अब मैं ये भी समझाता हूं आपको. Confidence interval. ये जो मार्जिन ऑफ एरर आप सैंपल पैरामीटर में लगा के रेंज निकालोगे, ये रिसर्चर का, ऋषिकेश का कॉन्फिडेंस इंटरवल है. क्या मतलब, अगर कल को यक्ष त्रिवेदी बोलता है मैं भी ऐसा ही एक रिसर्च करना चाहता हूं, मैं भी पेपर पब्लिश करूंगा, तो अगर वो रैंडमली इसी नो नेम आइलैंड पे जाके सेम सैंपल पैरामीटर्स रैंडमनेस के साथ विद द सिमिलर सैंपल साइज स्टडीइंग द सेम सैंपल पैरामीटर, अगर वो स्टडी करेगा तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उसका भी एवरेज वैल्यू इसके बीच में आएगा. ये है रिसर्चर का कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इंटरवल. लेवल नहीं, इरेज लेवल, इंटरवल. अगर कोई और रिसर्चर सिमिलर प्रोफाइल पे, सिमिलर डेटा पे, रैंडमनेस के साथ, सिमिलर सैंपल साइज पे सिमिलर सैंपल पैरामीटर को स्टडी करेगा, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस, वो रिसर्चर बोलता है, ऋषिकेश बोलता है कि मेरा लेवल बहुत हाई है कि उसका एवरेज मेरे इंटरवल के बीच में ही आएगा. तो आई आस्क हिम, ओके, बट ये वेरी हाई और वेरी लो क्या होता है? गिव मी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. तो स्टैटिस्टिक्स में इसका वर्ड है कॉन्फिडेंस लेवल. ये इंटरवल है, कॉन्फिडेंस लेवल. ही सेज I am 95% confidence level, not sure. I am speaking this from 95% confidence level. अब ये complete हुआ. That if Yaksh Trivedi does similar research on this island with the same sample size, following the same randomness, studying the same parameter, my confidence level at 95%, he will be in my confidence interval.
अब वो हो सकता है 1960 आ जाए, हो सकता है 2180 आ जाए, बट उसका एवरेज इसमें आना चाहिए 95%। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, तो ये 95% है। क्या 99 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये 90 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये 80 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल 80 हो सकता है। याद रखो, अगर कॉन्फिडेंस लेवल 80 है, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल 80 है, तो दैट मीन्स वो उसमें ना मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा ले लिया है उसने। ही इज नॉट वेरी श्योर कंपेयर्ड टू जब आप 95 पे, कंपेयर्ड टू जब आप 99। ठीक है? So at a higher level, when you go at a higher level, what you are saying is that your confidence level of 99% says that if anybody else does this, very high chances कि उसका, तो 100% confidence level जैसा कुछ नहीं होता है। Theoretically possible है, बट कोई भी रिसर्चर ऐसे क्लेम नहीं करेगा। तो आप देखते होंगे ना, वो लाइफ बॉय का एड आता है एंड इट सेज 99.9% जर्म्स किल कर देता है, बिकॉज कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे औसतन 3 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ते हैं। Why is this said like this? Because in statistics there's nothing conclusively extreme end पे आप टॉल क्लेम नहीं कर सकते। वैक्सीन जब आई तो उन्होंने ये बोला कि हमारी वैक्सीन का एफिकेसी 70% है, मेरी वैक्सीन का एफिकेसी 92% है। कोई 100% एफिकेसी पे काम नहीं करता है। तो बिकॉज यू नेवर नो, देयर कैन बी वन एक्सट्रीम केस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके उसमें मिस हुआ है, आप वो क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, और फिर मैं आपको आई ओपन इट फॉर क्वेश्चंस। पॉपुलेशन साइज, रैंडमनेस होना चाहिए, सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल पैरामीटर क्या होता है, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है जिससे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा, एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज समथिंग दैट रिसर्चर क्लेम। ठीक है? ये सब आया समझ में जो मैं बोल रहा हूं? तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। Last thing, guys, then we go to questions, and no, then we go to break, and then we go to questions. So there are I think three जो कि type of studies that you may be talked about or you may be asked in SAT. एक होता है survey type of research, एक होगा observation, और एक होगा experiment. ये मैं लूंगा नेक्स्ट पेज पे। सर्वे, क्वेश्चनएयर, ईमेल पे, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, नॉट सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, सेंट ऑन ईमेल, फोन, डोर टू डोर, क्वेश्चन पूछा, खुद ने भरा, कस्टमर से भरवाया, डेटा लेके आए, डेटा क्लीनिंग, डेटा एंट्री, समथिंग दैट इज क्वेश्चनएयर बेस्ड। वो क्वेश्चनएयर ओपन एंडेड हो सकता है, बताइए आज की एसएटी क्लास का अनुभव कैसा था, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड हो सकता है, हाउ वुड यू रेट टुडेज एसएटी क्लास, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फैबुलस। पुअर का ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने आपको, ये बायस्ड है, हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते, एक पुअर भी देना पड़ेगा। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चनएयर लेड हैं, अब वो क्वेश्चनएयर ईमेल पे हो या कुछ हो, ये सर्वे टाइप है। ऑब्जर्वेशन, वेयर रिस्पोंडेंट मे नो मे नॉट नो कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है। तो मान लो मैंने आज अनुष्का को एक टास्क दे रखा है, दिया नहीं है, एक टास्क दे रखा है कि ये मैं क्लास ले रहा हूं, तो मेरी क्लास में चुपचाप विदाउट पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्व करो कि बच्चों का आई बॉल कॉन्टैक्ट विद स्क्रीन, समथिंग लाइक दैट, कितने टाइम हुआ, और ऐसा करो। सो उसने वो कुछ डेटा कैप्चर किया और फिर उसमें से हमने निकाला कि गर्ल्स का ऑनलाइन क्लास में हमारे सैंपल में, आपको नहीं पता या आपको पता है, बट अगर आपको पता होगा तो आप बायस हो सकते हो। सो वेयर यू आर आइदर पार्टिसिपेटिंग और नॉट पार्टिसिपेटिंग बट ऑब्जर्विंग योर रिस्पोंडेंट। मॉल में चले गए, कोने में कुर्सी लगा ली और ये देखने लग गए कि जब हाउसवाइफ्स या जब बाय हाउसवाइफ एनीथिंग, व्हेन यू बाय हाउस होल्ड आइटम्स, ग्रोसरीज, आप उसको उठा के क्या देखते हो, प्राइस देखते हो, वेट देखते हो, स्मेल करते हो, और आप अपना नोट शीट बना रहे हो, ऑब्जर्वेशन। ठीक है गाइस, ये एसएटी में कैसे आएगा, ये आ सकता है कि ये कौन से टाइप की स्टडी है, बट सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चंस मैंने देखे, इफ यू आस्क मी, इन दोनों पे आई हैव हार्डली सीन क्वेश्चंस। लेट्स कम डाउन टू एक्सपेरिमेंट में क्विकली समझाने की कोशिश करता हूं।
कैसे समझाऊं मैं आपको? सो लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं, रैंडमली मैंने इनको 50-50 के 2 ग्रुप में बांट दिया। इन बच्चों को एसएटी ट्रेनिंग दी, इनको कोई एसएटी ट्रेनिंग नहीं दी। इनको कोलगेट कराया, इनको पेप्सोडेंट कराया, या इनको कुछ नहीं कराया, इनको जो करना है करो, इनको कोलगेट कराया। इनको हॉर्लिक्स पिलाया, इनको कुछ नहीं पिलाया। कुछ नहीं पिलाया मतलब हॉर्लिक्स तो नहीं पिलाया, एंड सो ऑन। तो इनको एसएटी ट्रेनिंग दिया, इनको एसएटी ट्रेनिंग नहीं दिया। 100 बच्चों की क्लास थी, रैंडमली मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर इन्होंने एसएटी एग्जाम दिया और मैंने इनका एवरेज स्कोर निकाला। लेट्स से इनका एवरेज आया 1490। ज्यादा की बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। और जिन्होंने एसएटी ट्रेनिंग नहीं ली उनका मैंने वो निकाला और इनका एवरेज आया 1340। ये मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं, मैं बताऊंगा टेक्निकली आपको चीजें। और मैंने कंक्लूजन निकाला कि हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चे, कोलगेट टूथपेस्ट करने वाले बच्चे और यूटी में एसएटी करने वाले बच्चे ऑन एन एवरेज 150 पॉइंट्स ज्यादा स्कोर कर, है ना। जैसा आप एड्स में भी देखते हो, जो कंपैरेटिव एड्स आते हैं कॉम्प्लान वाले और वो सब। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब थोड़ी सी चीजें समझते हैं गाइस। दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये टेक्निकल वर्ड्स है और ये आएगा एसएटी। दिस ग्रुप जहां पे इंटरवेंशन लगाया, इंटरवेंशन मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नेचुरल सेटिंग के बाहर एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई लगाया। जब मैगी का ऐड आता है और आपको मैगी खाने का मन होता है, दैट्स एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मॉल में जा रहे हैं और बेकरी के पास से गए और वो कुकीज की स्मेल आती है, तो दैट्स एन एक्सटर्नल, और आपको कुकीज खाने का मन होता है ऑफ कोर्स। तो वैसे ही ऐसे, दिस इज एक्सटर्नल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल ग्रुप। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने शायद, हाँ आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये कंट्रोल ग्रुप हो गया आपका, और इनको आपने कुछ नहीं किया है। दे आर फ्री ग्रुप, जिसको कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई काम नहीं किया है। मैंने एक मिनट, स्टिमुलस इसको दिया ना मैंने? नहीं, आई करेक्ट। जिसको स्टिमुलस दिया वो तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, गलत बोल रहा हूं। दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक्सपेरिमेंट ग्रुप। इनको तो कुछ नहीं दिया, इनको तो उनकी सेटिंग में बांध के रखा कि कोई भूल से भी एसएटी की ट्रेनिंग में नहीं चले जाए। दिस इज कंट्रोल। आई स्टैंड करेक्टेड, प्लीज ये चेंज कर लीजिए, आई एम सॉरी फॉर दिस। दिस ग्रुप जिसको आपने इंटरवेंशन दिया वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, जिसको आपने कुछ भी नहीं किया दैट इज कंट्रोल। बस, तो ये कंट्रोल ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप, और ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, बस दैट्स ऑल। बोलो, अब आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, मुझे और कुछ इसमें नहीं बात करनी है। बोलो बोलो बोलो, एनी क्वेश्चंस यू हैव? आर वी गुड? तो क्या क्या चाहता हूं मैं, आपको ये पता हो पॉपुलेशन साइज क्या होती है, सैंपल साइज, पैरामीटर अंडर स्टडी या सैंपल पैरामीटर, मार्जिन ऑफ एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल। मार्जिन ऑफ एरर और कॉन्फिडेंस लेवल स्टैटिस्टिकली रिसर्चर क्लेम करते हैं अपना कैलकुलेट करके, एसएटी का वो पार्ट नहीं है। सैंपल साइज निकालना एसएटी का पार्ट नहीं है, बट ये इन्फ्रेंसेस एसएटी का पार्ट है, जैसा हमने स्टैंडर्ड डिविएशन में देखा। हाँ, so before we go for a break, a question just to check the understanding, and it's only on the screen, I think. I don't know ये और कहीं है कि क्या है, ये कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं, let's do this guys, और ये साथ में करते हैं। चलो, a random sample of 35 four-door passenger vehicle has had a mean gas mileage, ये आ गया पैरामीटर अंडर स्टडी। माइलेज कितना है, मीन माइलेज इन माइल्स पर गैलन ऑफ 25.9 माइल्स पर गैलन। तो 35 फोर डोर व्हीकल्स को स्टडी किया और उनका माइलेज कितना देती है, माइलेज 25.9 माइल्स पर गैलन, ये इनका एवरेज है। The estimate had a margin of error 2.69
miles per gallon at 98% confidence level. Of the following, which is the most plausible? ये बहुत important word है. Most plausible. 100% तो कुछ होता ही नहीं है जैसे मैंने बोला. तो सबसे likely क्या है? Value of true mean. True mean मतलब अगर पूरे population का अगर मैं mean निकालूंगा उसको true mean बोलते हैं. So what is the most plausible value of true mean gas mileage for all 4-door passenger vehicles? तो मेरा करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. एक नंबर लाइन बनाओ, एकदम बच्चों की तरह करना है इसको. यहाँ पे लिखो 25.9, 25.9, 25. Oh, this is a pain. 25.9. 2.6 मार्जिन ऑफ एरर है तो हायर एंड पे चले जाओ तो ये हो जाएगा 27, 28.5. देखना, इफ आई एम मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक तो प्लीज करेंगे. 28.5. यहाँ पे आ जाते हैं 23.3. सही कर रहा हूँ शायद मैं. 23.3. ये आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल. अब वो पूछ रहे हैं कि ये डेटा के हिसाब से मोस्ट प्लॉजिबल वैल्यू क्या है. तो मतलब ये 4 में से एक ही होना चाहिए. 24 को देखते हैं, क्या 24 इस रेंज में है? क्या 24.9 है? नहीं है. क्या 32 है? नहीं है. क्या 35 है? नहीं है. आंसर इज द मोस्ट प्लॉजिबल वैल्यू अमंग द गिवन ऑप्शन. अगर पॉपुलेशन पे ये स्टडी करोगे तो मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 24 अमंग दीज 4. ये लिखा हुआ नहीं है अमंग दीज 4. तो इसका ये मतलब है कि 25 या 23.5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट आपको ऑप्शन में एक ही दिया हो. तो ये 98% कॉन्फिडेंस लेवल क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए दिया है. उसकी कोई वैल्यू है अभी कैलकुलेशन में? कोई वैल्यू. बोलो गाइस, ठीक है. सो विद दिस वी टेक अ 5 minutes का बायो ब्रेक एंड आई सी यू एट 12:50, 12:45 हो रहा है. थैंक यू. फ्रॉम द बाद में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बट वीडियो ऑन रखो, वीडियो बंद नहीं रखना है. एंड जय पटेल, आई होप यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम बिकॉज अनुष्का मैडम अब इससे आगे अलाउ नहीं करेंगी वीडियो ऑफ. तो चलो वी डू क्वेश्चंस नाउ. चैप्टर 9 और सब कुछ करते हैं जितना जितना भी पॉसिबल है. आई हैव 35 + 7 42 minutes ऑफ दिस क्लास. तो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर बुक. प्राइवेटली आंसर भेजना है. मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है. We will discuss only those questions जहाँ पे किसी एक को भी अगर डाउट है तो. Otherwise, I am not discussing those questions. So, question number 2 from your book. Send answers privately. I am correct. रेवती, कृष्णा, वापस करो. करेक्ट. अयान वारेकर, सानवी, आरुषि, करेक्ट. यक्ष, करेक्ट. अब सही है. Yes, Callum. This is a classwork 9.1. है ना? 9.1 है ये classwork. हाँ. Akshita, correct. चलो. So yes, A is the answer. Please let me know anyone if you would want me to solve this. Otherwise, I go to next question. Sir, can you solve this? बिल्कुल. चलो करते हैं. A typical SAT type problem. और मैं वो भी लेता हूं जो आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन लेते हैं जो आया था और वो क्यों गलत ही है. लेट्स अंडरस्टैंड. N stands for students. Unit is student in each class. P stands for number of pencils distributed equally among these students. P pencils distributed equally among these students. How many pencils are there for each
स्टूडेंट, मतलब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आने चाहिए। ये देखो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर में तो पेंसिल आ गए हैं, है ना रेवती कृष्णा, तो डिनोमिनेटर में तो स्टूडेंट आना चाहिए। टोटल के क्लासेस हैं एंड n स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए n इंटू के, तो डिनोमिनेटर में n इंटू के आना चाहिए। पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बस आंसर ये है। अदरवाइज भी देख लो, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, you get pencils per student. Answer is A. Question number 5 from your book 9.1. 5. So which question? Can you please repeat? This is Akshita fifth problem, and जो मुझे दिख रहा है ये वो नंबर है, consider integer not real Yes, number, yes. the least greatest. This is very very good problem. ये आपका Yes. मीडियन मोड सब चेक हो जाएगा इसमें। Correct. Yeah. रेवती, गोस्वामी, कृष्णा, आरुषि, यक्ष, अयान, वारेकर, क्या हो गया, समृद्धि। समृद्धि, you've been following whatever we are discussing? Yes, sir. ठीक है, चलो। अक्षता, सानवी, कैलिब, श्रेयस, करेक्ट। गोस्वामी, वेरी गुड। करेक्ट गाइस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कृष्णा, समृद्धि, रेवती, करेक्ट। आरुषि, करेक्ट। चलो भाई, व्हाट हैपेंड? तो मुझे बताओ, शैल आई, यू वांट मी टू डू दिस? यक्ष त्रिवेदी, आंसर नहीं आया? Sir, I'm getting only one answer, like A, but हाँ, तो यक्ष इसको साथ में करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन आई गो टू वर्किंग स्पेस एंड यू गाइड मी तुम कैसे कर रहे हो। कंसिडर इंटीजर नॉट रियल नंबर्स, लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन अ लिस्ट ऑफ 7 रियल नंबर्स, ये अच्छा भैया ऑड है, are 2 and 20 respectively. Median of the list is 6. Number 3 occurs most. Which of the following could be arithmetic mean of the numbers in the list? क्या क्या possibilities? 7, 8.5, 10, 1 only, 2 only, 1 and 2 only, 2 and 3, ऐसे बहुत सारे ये ऑप्शन मैं इसको यूज करता हूँ। तो आ जाते हैं वर्किंग स्पेस। क्या वर्किंग स्पेस स्पॉटलाइट पे है? चलो भाई, या जस्ट हेल्प मी आउट, बताओ कैसे करें इसको। हाउ आर यू डूइंग दिस? so I have written like in order. I have written 2, 20, and the median is 6. 5, 6, 7. This is the median. मैं यहाँ 6 लिख दूँ यक्ष? Yes. 2 लीस्ट है, 20 मोस्ट है, इसी ऑर्डर में हमारी लिस्ट है। ओके यक्ष? So I have at least put 2 3s in it. यहाँ पे ही हो सकते हैं 3 और 2 ही हो सकते हैं, 3 is occurring most, और ये एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो देयर आर ओनली 2 स्पेसेस, तो पक्का 6 यहाँ नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, बट 6 अब कहीं भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 2 बार आ गया है, बाय मॉडल डेटा है ही नहीं, मैंने आपको बताया यूनी मॉडल तक ही रहना है हमको, 3 is occurring most।
अब ये 7 से लेके 19 तक कुछ भी हो सकता है और रिपीट नहीं हो सकता, ये सब क्लियर है गाइस? पहला ऑप्शन बताओ, पहला रोमन ऑप्शन क्या है? 7 पॉसिबल एवरेज मीन, है ना यक्ष? Yes, sir. 7। तो अगर किसी डेटा सेट का एवरेज 7 है तो उसका सम ऑफ नंबर्स क्या होगा? अगर एवरेज 7 है तो कैन आई से सम ऑफ ऑल दिस वुड बी 49, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, Yes. तो ये 49 होगा। So let's say this is x and this is y. We know that x is not equal to y, वरना 3 most occurring नहीं होगा। 2 plus 3 5 plus 3 8 plus 6 14 plus 20 34 plus x plus y is equal to 49, ऐसे लिख सकते हैं यक्ष? Yes, sir. x plus y को ऐसे लिख सकते हैं 49 minus 34 is 15। अब बताओ ये x plus y की possible values मुझे बताओ such that they shouldn't be equal and they should add up to 15, where each can be greater than 6 but less than 20। 7 and 8. 7 and 8 बस यही possibility, और कुछ possibility नहीं है। 9 और 6 ले ही नहीं सकते। और टॉप लाइन में लिखा हुआ है कंसीडर इंटीजर्स नॉट रियल नंबर्स, तो ये तो पॉसिबल है 7 एवरेज हो जाए, ये तो पॉसिबल है कि नहीं मिस देसाईज? हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला नहीं लेता हूं मैं, थर्ड वाला लेते हैं। क्या है? 10। Yes. सिमिलर लॉजिक। 34 प्लस, ये फास्ट करते हैं, 34 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू, अगर 10 एवरेज है तो उनका सम होना चाहिए 70। ये स्टेप नहीं समझ में आएगा तो पूछना। क्या ले? मेकिंग सेंस? ओके, सो एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 36। बोलो एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज, कोई भी बोलो। एक्स प्लस वाई 17 and 19। हाँ, इंटीजर्स होना है 17 और 19, पॉसिबल है, इससे ज्यादा क्यों दिमाग? पॉसिबल है, वो वैल्यूज नहीं पूछ रहे हैं पॉसिबल क्या है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, 8.5। अगर 8.5 7 नंबर्स का एवरेज है तो इसका सम हो जाएगा 7 8 जा 56, 59.5, ये सम हो जाएगा। बोलो, और ये सारे इंटीजर्स हैं गाइस। हाउ कैन इंटीजर्स का सम गिव यू अ डेसिमल एज सम? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आगे क्यों जाना है? नहीं जाना है, 1 and 3 ओनली। ठीक है, ओके। I want you to solve question number, एक minute, question number 16, 1-6। Again beautiful problem, वापस मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट चेक होगा। 1-6, अयान वारेकर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना आपको अभी जो किया हमने लास्ट? यस सर। ओके, yes, correct, and that was quick too, very good Yaksh. Yes, Ayan, correct. जय, आई विल वांट यू टू डू दिस वंस अगेन। एक बार देखो अपने मेथड को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। श्रेयस, करेक्ट। करेक्ट जय पटेल। सर जय पटेल का कैमरा बंद ही रहेगा क्या? आपने बोला था ब्रेक के बाद। हाँ जय, यू नीड टू पुट ऑन योर कैमरा नाउ। और अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप प्लीज फिजिकली ही आइए फिर, ये तो दिस इज नॉट अलाउड। And I'll not spend any more energy into this. Let me concentrate on class. Sanvi, correct. Samruddhi, correct. Akshata, correct.
चलो भाई, let me know any one of you, anybody who would want me to solve this. आंसर है ऑप्शन डी 5.9. थर्ड जज जो है या कोई भी एक जज जो है वो मैक्सिमम स्कोर ये देगा टू अचीव द गिवन ऑब्जेक्ट. Sir, can you solve this question? श्योर नहीं, व्हाई नॉट. चलो लेट्स डू इट. एक बार डेटा पढ़ लेते हैं. सो डेटा सेज अ फिगर स्केटर, ओके, competing local competition needs a mean of 5.8 out of total of 6, okay, to win first. ठीक है. If there are 3 judges, one of them given 5.5, what is the lowest score she can get from the remaining 2 judges if she still wants to finish first? देखो भैया, ये तो ना एक सिंपल अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ 2 नंबर्स में एक को मैक्सिमाइज करना है, एक को मिनिमम करना है, सच दैट वो कांस्टेंट जो है वो मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स इज अ कांस्टेंट, तो एक का मैक्स और एक का मिन वैल्यू निकालने जैसा कुछ काम है. तो चलो इसको करते हैं. अगेन लेट्स से देयर आर 3 जजेस. ये 3 जज हैं हमारे पास. इसमें से एक जज ने 5.5 दे दिया. मुझे चाहिए दैट कितना चाहिए, 5.8 का स्कोर चाहिए एवरेज में टू विन फर्स्ट प्लेस. अगर एवरेज में 5.8 चाहिए तो तीनों जजेस से द स्कोर शुड बी 5 3 15, 8, 24, 17.4. बोलो गाइस. ओके, तो ये 5.5 तो कुछ नहीं कर सकते, ये जज ने तो स्कोर दे दिया. आई होप आई हैव रिटन दिस करेक्ट. ये 5.5 ही है ना? हाँ ठीक है. सो दिस इज 0.96. 11.1 बचता है मेरे पास, 11.9 बचता है. ये दोनों जज से द सबमिशन शुड बी 11.9. तो अगर आप इसको मैथमेटिकली समझोगे, व्हाट आई एम सेइंग इज x plus y is a constant which is 11.9. किसी भी एक जज का मिनिमम पॉसिबल स्कोर क्या है? लेट्स से y का मिनिमम निकालना है, तो x को मैक्सिमाइज कर दो. बताओ x का पॉसिबल स्कोर क्या है, मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल क्या है x का? 6 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता है. इसको मैक्सिमाइज करेंगे तभी तो सम ऑफ 2 क्वांटिटीज अगर कांस्टेंट है मुझे y मिन मिलेगा. अगर ये 6 है तो y का मिनिमम स्कोर बताओ. 5.9. इससे कम स्कोर आएगा किसी भी एक जज का तो गए. तो अगर गोल्ड मेडल जीतना है 5.8 चाहिए. 5.8 चाहिए तो किसी भी जज का मिनिमम स्कोर 5.9 के नीचे नहीं हो सकता, 5.9 होना चाहिए. क्या ले? ओके. अब ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बट सिंस ये ऑन पब्लिक डिमांड हमने सॉल्व किया, बट सिमिलर लॉजिक पे एक और क्वेश्चन है. मैं अदरवाइज स्किप करता इसको, बट लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 17. आई वांट टू रिकन्फर्म दिस लॉजिक. क्वेश्चन नंबर 17. ये ऑनलाइन स्टोर का एक क्वेश्चन है. रेटिंग बिटवीन 0 and 100. प्लीज करो. Sir, question number 17. Yes, correct, Sanvi. Very good. Sanvi, Jay, Ayan Khatri, correct. अयान वारेकर, थोड़ा सा और समय है. प्लीज रिविजिट योर सॉल्यूशन. ओके सर. एक बार देखो क्या किया. वैसा सा ही क्वेश्चन है. द ओनली थिंग इज अब 3 जज नहीं है. What is the least value score can receive from the 11th rating and get an average of at least 85 for first 20 ratings? 10 ratings तो आ चुकी हैं.
ठीक है अयान, we'll do this together. करेक्ट. इतना कितना कितना टाइप करते हो आप लोग. ऑप्शन ए सिर्फ ये लिख दो, गुड इनफ. ठीक है गाइस, चलो लेट्स डू दिस. एंड अयान वारेकर, यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी आर डूइंग दिस टुगेदर. हाँ, यस सर. एंड आप सबने डेटा पढ़ लिया है, मैंने भी पढ़ लिया है, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम इन रीडिंग द डेटा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. 20 रिस्पोंडेंट्स हैं, 10 ने अपना स्कोर दे दिया है और उनका एवरेज स्कोर, ईच पर्सन कैन गिव बिटवीन 0 to 100. एवरेज स्कोर उनका 75 आया है. 11 से 20th वाले लोगों का स्कोर आया नहीं है. 11th वाला मिनिमम क्या स्कोर देगा 0 to 100 में, सच दैट ओवरऑल 20 लोगों का रेटिंग शुड हैव एन एवरेज ऑफ मिनिमम 85. ठीक है अयान वारेकर? हाँ सर. मैं ना इसको लॉजिकल रीजनिंग की तरह करता हूँ. फॉरगेट मैथमेटिक्स. वैसे लॉजिकल रीजनिंग इज मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लॉजिकल रीजनिंग, बट लेट्स डू इट दिस वे. तो आई हैव ये और ये से 10th तक इन लोगों ने अपना रेटिंग दे दिया और इनका एवरेज आया 75. राइट अयान? कैन आई से दे हैव कंट्रीब्यूटेड 750 इन माय टोटल? यस. ये मेरा 11th वाला बंदा है, तो ये तो अपना स्टार बंदा है क्योंकि इसका ही निकालना है. देन यू हैव 12 से लेके 19 एंड 20th वाला बंदा, इनकी भी रेटिंग आनी है. द क्वेश्चन सेज इन सब का मिनिमम एवरेज 85 होना चाहिए. एवरेज 85 होना चाहिए मतलब इंटू 20, 1700. सही बोल रहा हूँ? 85 का डबल 170 और एक जीरो लगा दो, 1700 होना चाहिए इनका टोटल. गुड न्यूज इज ये 1700 में से 750 आ चुके हैं आयान वारेकर. हाँ सर. तो विच मीन्स मुझे 950 और चाहिए एडिशनली, क्योंकि ये 1700 में से इतने पॉइंट्स तो आ गए फर्स्ट 10 से. नेक्स्ट 10 से मुझे 950 चाहिए. नाउ क्वेश्चन सेज ये मिनिमम कितने पॉइंट्स दे, इसका मिनिमम स्कोर निकालना है. तो इन सब का मैक्सिमम स्कोर निकाल लो. ईच पर्सन कैन गिव मैक्सिमम स्कोर कितना, बोलिए वारेकर जी. ईच पर्सन कैन गिव मैक्सिमम रेटिंग कितने पॉइंट्स का? 95. 95. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ना ही चाहिए था ना. पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, जोर से पढ़ो. पूरा क्वेश्चन. यस, पूरा क्वेश्चन पढ़ो. An online store receives customer satisfaction ratings between 0 and 100 inclusive. रुक जाओ. कितना होना चाहिए मैक्सिमम स्कोर पर पर्सन? मैक्सिमम स्कोर क्या दे सकता है कोई? हाँ, मैक्सिमम 100 स्कोर दे सकता है. 100 दे सकता है. इसका मिनिमम निकालना है तो इन सबको मैक्सिमाइज कर दो. अभी मैंने आपको बोला कि सबको, बाकी सबको, ये पूरा एक वेरिएबल ले लो ना भैया. ये पूरा एक वेरिएबल ले लो x, ये हमारे हीरो को ले लो y. x प्लस y होना चाहिए 950. बोलिए, ये सब लोग 100 दे सकते हैं ईच. यस. कितने लोग हैं? 12 to 20. कितने हैं? हाउ मेनी पीपल? 8. हैं? 8 है ना. 12 to 20. चलो लेट्स डू दिस. आई नो दिस साउंड्स थोड़ा सा क्रेजी. चलो काउंट करते हैं. बोलो 12. फिंगर पे काउंट करो. 12. हाँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कितने फिंगर्स, कितने काउंट है? अच्छा रुको, वापस करता हूँ. हाँ करो. 9. पक्का? क्योंकि आई अज्यूम तुम्हारे और मेरे फिंगर्स, अनलेस एंड अनटिल आई एम एन एलियन और वाइस वर्सा, तो वो तो 9 लोग हैं. मैक्सिमम 100 दे सकते हैं. कैन आई से 900 उनसे आ जाएगा. x 900 बना दो. तो ये मिनिमम कितना दे सकता है? मिनिमम 50. 50. उससे कम नहीं दे सकता ये. उससे ज्यादा तो दे सकता है. तो 11th वाले का मिनिमम रेटिंग इज 50 पॉइंट्स. अब ये काउंटिंग वाउंटिंग में अगर गड़बड़ करोगे तो ब्रह्मा जी भी हेल्प नहीं कर सकते. मैं तो कुछ नहीं हूं क्या. हाँ, ये गलतियां नहीं करनी है. 12 से 20 में 8, ऐसा क्यों? चलो, सो आई वांट यू टू सॉल्व नाउ. ये क्लियर हो गया? एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, रेटिंग वाला? ये बहुत टिपिकल टाइप ऑफ एसएटी प्रॉब्लम है कि वो एवरेज से आपको किसी एक यूनिट का मिनिमम स्कोर.
मुझे देखने दो और कितना कर सकते हैं इसमें. ये हिस्ट्री टेस्ट वाला भी बहुत अच्छा है. एक मिनट. नहीं, but I would want to do this. 13th is a beautiful, this is direct from one of the previous year SAT papers. 13th, 1, 3. Please solve करिए. ये ना टेम्परेचर वाला कोई क्वेश्चन है. Very good question. 1, 3. Yes, very good, fantastic. Ayan Khatri, Arushi, Z, correct. Krishna, correct. Revati, correct. Very good. Samruddhi, you are going to solve this for me. Irrespective of answer क्या आता है आपका? Correct, Shreyash. Correct, Yaksh. City D का temperature could be any of the following except and Samruddhi left. Okay. Akshata, what happened? Correct. So let me know. I think जितने भी answers आए हैं तो सभी के सब correct हैं. So in case you want me to solve this, please prompt. Yes, I want. ठीक है आरुषि. So I'm sharing my screen and Akshata Chile, please help us with your method. एक मिनट आता हूँ मैं अक्षता उस पे. Yes, I'm doing this scallop. So clear your question. ये रहा. नहीं ये नहीं है, ये रहा. अक्षता चलो help. Yes, sir. So I said D because they've said that the median temperature for the city is 40. So the median cannot be more than 40 degrees Fahrenheit. So median is given as 40. Median Yes, is given as 40. How many cities are there? So 7. Which means अगर इसको ascending order में लगाया तो जो fourth place पे city है उसका temperature 40 है. Can I say that? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Then the noon temperature city D would be any of the following except. क्या 40 है हमारे ये लिस्ट में कहीं पर है? No, sir. अरे क्या करते हो आप लोग ऐसे झटके दे रहे हो. मेरी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है. ये लिस्ट में 40 कहीं है? So there's 42. नहीं ऑप्शन Okay. 7 सिटी लिस्ट में 40 है. Yes, sir. Yes, sir. So can I say this is my fourth place वाला सिटी? Yes, sir. तो 3 cities के नीचे चाहिए मुझे. I have 27, I have 33 and there are 3 cities which are above, है ना? Yes, sir. तो for sure ये जो T बचा है वो below 40 होना चाहिए. Yes, sir. So this should be less than 40. Let's look at the option. There's only one option which is above More than 40. because they are asking कौन सा possible नहीं है. यही possible नहीं है. Possibly you got it right अक्षता और तुमको पता भी है इसको कैसे solve करना है. Just that while you are explaining तुम मेरे question को नहीं समझ पाए. But correct answer is correct. Yes, sir. Caleb, Arushi Goswami, good. Yes, understood. तो ये बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था. फ्लैट
10 seconds. अब कुछ ना, let's do. How much time do I have? Any idea? कितना समय और है क्लास में? 1:35 is when we close, I think. अभी है 15 minutes. ठीक है. So I want you to solve. Hold on, guys. SAT challenge problem 1. मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि आपके और मेरे में कई बार डिफरेंस आ जाता है. I want you to do this question. देखो, ये एक कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका, डॉट प्लॉट, टेलीफोन लाइंस वाला सवाल है. I want you to solve this one. This is a grid-in question. Options नहीं है. आपको आंसर टाइप करके डायरेक्टली मुझे भेजना है. Please solve. This is from Khan Academy. Level 4. That challenge problem 1, Caribbean, Central America, telephone line वाला question करना है. Grid in question है. Type in your answer, send to me directly. करेक्ट है यार, वेरी गुड. ये इतना सिंपल नहीं था, इसमें एक छोटी सी गूगली है. वेरी नाइस. यस जय, करेक्ट. शैला है, क्या हो गया? What is the median number of telephone lines in thousands? ये पूछा है. नहीं कैलम, it's not what you say right now. उसको वापस देखो. Yes, correct रेवती. यक्ष correct. Yes, Arushi, that's right. So Arushi, please unmute and help us solve this. I want to understand your method. Yes, sir. So I actually counted the total number of dots. Don't tell me, is it? Yes. हाँ, काउंट करना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है कितनी कंट्रीज का डेटा है. हाँ. So when you count the dots, you will know number of countries जिसपे ये सर्वे हुआ. So I know ये 60. Each dot represents a given country, okay? Because it says number of countries on y-axis, and x-axis पे मुझे मिल रहा है number of telephone lines they have in use in thousands. The unit is thousands. So 16 countries वहाँ पे हैं. 5 यहाँ पे है. 1. ये क्या है? 2. 2. 1. 1. 16 and 5, 21, 22, 26, 27, 28, Arushi. 28. Okay. So Go ahead. because 28 is a even number, तो उसकी middle value. उससे पहले आरुषि, जो आपने किया बट बताया नहीं, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है गाइस. देखो, ये कंट्रीज का डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेलीफोन लाइंस दे हैव. तो 28 कंट्रीज हैं मेरे पास. गो अहेड आरुषि. तो 28 is a even number, तो उसकी middle values के लिए हम ये लेंगे 14th and 15th.
dot. 14th and 15th का आपको एवरेज लेना है, वो भी ग्राफ पे मिल जाएगा. ये 14th है, ये 15th है. हाउ मेनी टेलीफोन लाइंस जो कंट्री 14th पे है, कितनी टेलीफोन लाइंस है? So 0. 0. 15th वाली कंट्री के कितने टेलीफोन लाइंस है? 0. 0 plus 0 divided by 2, what will I get? So 0. 0. So answer is 0. This is the median number of telephone lines. And done. बताओ, ये आया समझ में? Okay. Now I would want you to solve. ये क्या है? हाँ, beautiful question. I think this is the last problem I'll do on mean, median, mode. ये कर लिया तो मतलब सारे फंडे क्लियर हैं. Question number 14, gem for problem. Please solve question number 14 from your book, and then we'll do sample survey wale questions. Sir, can you Yeah. please repeat which questions because I'm having an internet problem on my end. 1-4. Okay, sir. Okay, sir. I've got only one answer. So Ayan, I guess तुम्हारा hold बहुत अच्छा हो गया है, but this shouldn't make you complacent. Keep practicing. Khan Academy के सारे levels आप पूरे करिए, and update your mom also and update me also parallelly. हाँ? सर मेरा मैथ्स हो गया खाना खाने पूरा, बस इंग्लिश बाकी है अभी. तो वो किसके लिए बाकी है? क्रिसमस के लिए? वो थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो गया तो धीरे धीरे कर रहा हूँ. मैथ्स मेरा बेटर है तो मैंने पहले कंप्लीट करता. हाँ ठीक है, बट पॉइंट इज कि उसको छोड़ना नहीं है. हाँ सर कर लूँगा मैं. हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट वीकेंड तक कंप्लीट. ओके. Do not worry if you're not arriving at an answer. At least have some steps. तो at least ये तो पता चलेगा कि मेंटल ब्लॉक था या कुछ आपने गलत कैलकुलेट कर लिया. तो इसको करते हैं. Shall we? करें इसको? So Ayan Khatri, you will help us do this. First, read this question for all of us. Yes. So the number of siblings per student in a preschool class is given in the table. The table shows how many students in a class of 12 preschoolers had 0, 1, 2 or 3 siblings. Later, a new student joined the class and the average arithmetic mean number of siblings per student became equal to the median number of siblings per student. How many siblings did the new student have? So we know that So रुको. So guys, if you understand, अभी 12 preschoolers हैं and ये data arranged है. 0 sibling के 3 बच्चे हैं, 1 sibling का 6 बच्चे हैं, 2 sibling के 2 बच्चे हैं, 3 sibling का 1 ही बच्चा है. A new student joins in and they say when that happens, the average sibling per student in the class becomes equal to median number of sibling per student. ये जब एक नया बच्चा enter करता है,
ऑफ कोर्स 13th। सो वो पूछ रहे हैं जो नया बच्चा आया, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड दिस न्यू स्टूडेंट हैव। ये मैं शट करता हूं। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, वी गो टू वर्किंग स्पेस। आप मुझे हेल्प करो, आई विल ट्राई एंड रिप्रोड्यूस इट हियर। बोलो, गो अहेड। Okay, sir. So the median will only change if we add the data in the middlemost place or the extreme ends. So the median will always remain 1 wherever you add the new students. So we get the median as 1. ठीक है, मुझे एक बार ये डेटा लिखवा दो। 0 सिबलिंग के कितने बच्चे हैं? 3. 3। 1 सिबलिंग का? 6. 2 सिबलिंग? 2. एंड 3 सिबलिंग 1। Yes, sir. 3, 6, 9, 10, 12। ठीक है, आई टेक इट ओवर फ्रॉम हियर बिकॉज तुमने जो बोला है ना वो कॉन्सेप्चुअली एकदम सही है। एंड वो इसलिए बोला तुमने डायरेक्टली, आई हैव अंडरस्टूड बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट्स। देखो अभी हम लोग है ना ओल्ड एवरेज निकालते हैं, न्यू स्टूडेंट को भूल जाओ। इफ आई फाइंड आउट ओल्ड एवरेज, मैं इसको नाम दे देता हूँ AO, ओल्ड एवरेज। एवरेज मतलब एवरेज नंबर ऑफ सिबलिंग पर स्टूडेंट। वो कैसे निकलेगा? 0 सिबलिंग के 3 बच्चे तो 0 into 3 0। 1 सिबलिंग का 6 स्टूडेंट तो 6 सिबलिंग। 2 into 2 4 सिबलिंग। 3 into 1 3 सिबलिंग। 6 plus 4 10 and 3 13। So I have total 13 siblings and total number of students are 12। ये मेरा ओल्ड एवरेज हो गया गाइस, बोलो। अभी नए स्टूडेंट को भूल जाओ, कम डाउन टू ओल्ड मीन। ओल्ड मीन 12 स्टूडेंट्स हैं तो जो 6th, ये ऑलरेडी अरेंज डेटा है 0 से लेके 3 तक। जो 6th पोजीशन पे है और जो 7th पोजीशन पे है इनका एवरेज लेना है। ये देखो, ये 3rd 4th 5th 6th 7th दोनों यहीं आएंगे। 6th वाला बच्चा भी 1 सिबलिंग का होगा, 7th वाला बच्चा भी 1 सिबलिंग का होगा, क्योंकि 9 बच्चे हैं ना यहाँ पे। आपको 6th और 7th लेने हैं दोनों मिला के। तो 6th वाले का भी 1 सिबलिंग है, 7th वाले का भी 1 सिबलिंग है। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो ओल्ड मीडियन इज 1। बोलो गाइस। नाउ अ न्यू बच्चा एंटर्स द क्लास। अब वो जब नया बच्चा आता है तो वो ये बोल रहे हैं एवरेज न्यू बिकम्स इक्वल टू मीडियन न्यू। ठीक है, अगर 13 बच्चे आए, अब 13 हो गए, तो मीडियन कहां पे मिलेगा? सेवेंथ वैल्यू देगा मीडियन। अगर 13 बच्चे हो गए तो 7th वैल्यू मीडियन देगा। अरुषि गोस्वामी, एम आई मेकिंग सेंस? तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है ना? यस सर, समझ रहे। अच्छा ठीक है, जहां अटको प्लीज पूछना, इसमें वो रीटेक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो 13 बच्चे आ गए तो मेरा नया मीडियन 7th वैल्यू पे मिलेगा। अब आप देखो वो नया बच्चा कहीं भी जाए, 7th वैल्यू वाले का हमेशा सिबलिंग का नंबर तो 1 ही होगा गाइस। वो अगर ऊपर आता है तो भी 7th वैल्यू यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा तो भी 7th वैल्यू यही होगा, वो यहाँ पे आएगा 2 सिबलिंग के साथ आएगा तो भी 7th वैल्यू तो 1 ही होगा, वो एकदम 3 सिबलिंग के साथ आ जाएगा तो भी 7th वैल्यू, क्योंकि ये क्यूमुलेटिवली 9 वैल्यूज हैं, ये नहीं बदलने वाली। 7th वैल्यू का सिबलिंग हमेशा 1 होगा। बोलिए श्रेयस जैन, अक्षता चले, नहीं ना? नहीं आया ना समझ में? सर मेरे को नहीं। ना सुनाई नहीं दिया आधा पार्ट, बिकॉज मेरे को सुनाई नहीं दिया। मेरा इधर इंटरनेट का थोड़ा सा बीच बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, श्रेयस जैन व्हाट डू यू से? Sir, can you repeat? मैं अलग तरीके से करता हूं। ये कितने 12 बच्चे हैं, 1 2 3 बच्चों के नंबर ऑफ सिबलिंग्स, 1 2 3 4 5 6 बच्चों के नंबर ऑफ सिबलिंग्स, 2 बच्चों के 2 सिबलिंग, 1 बच्चे का 3 सिबलिंग, ये हो गए 12 बच्चे, है ना रेवती देसाई? अब हमारा एक नया बच्चा क्लास में एंट्री लेता है तो टोटल बच्चे हो जाते हैं 13। तो मतलब जो बच्चा 7th पोजीशन पे है उस वो मीडियन डिसाइड करेगा, क्योंकि अब 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। जब 13th बच्चा आएगा, अगर वो यहां भी आएगा तो आप देखोगे ये 7th वैल्यू ये हो जाएगी। वो इसके नीचे आएगा तो भी 7th वैल्यू ये 1 के ब्रैकेट में ही घूमेगी, वो कहीं भी आने दो। 13th वाला बच्चा, 7th वाले बच्चे का हमेशा सिबलिंग तो 1 ही होगा,
तो नया मीडियन, लेट मी कॉल इट मीडियन न्यू, विल बी इक्वल टू 1. ओल्ड मीडियन भी 1 है, न्यू मीडियन भी 1 ही रहेगा. वो बोल रहे हैं दिस बिकम्स इक्वल टू एवरेज जब वो 13 बच्चा आ जाता है, मतलब ये नए एवरेज के बराबर है. अब अगर ये 1 है, पहले सम 13 था, या उल्टा करते हैं, चलो नया एवरेज 1 लाना है, टोटल बच्चे हो गए 13, तो सम ऑफ सिबलिंग्स कितने होने चाहिए? 13. तभी तो ये 1 होगा. मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स हमने जोड़ा था, ये जो 12, ये कितना आ रहा था? 13. तो ये 13 का 13 ही रहना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग बदलना ही नहीं चाहिए. ओल्ड टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग 0 into 3, 1 into 6, 2 into 2, 3 into 1. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको. तो ये 13 था टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग. अब बच्चे भी 13 हो गए, 12 का 13 हो गया, मगर अब ये एवरेज 1 हो जाना चाहिए. मतलब ये चेंज ही नहीं होना चाहिए. मतलब जो नया बच्चा आ रहा है, कितनी सिबलिंग होने चाहिए उसके? 0. 0. So that total doesn't change. Hence answer is 0. नए वाले बच्चे का 0 सिबलिंग. श्रेयस जैन. Yes, sir. तो अब वो जब यहाँ आएगा 0 को लेके, आप देखोगे वो जो भी 7th बच्चा है वो ये 7th बच्चा बन जाएगा, तो उसका मीडियन 1 ही रहेगा. Anyway, so this is how you solve this problem. We have already exceeded class time, but एक क्वेश्चन बस करेंगे from surveys and then we'll call it off. तो मैंने एक, अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अभी नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 25, विजुअली देख के आंसर निकल सकता है, ये जरूर करना. डाउट आए तो मुझसे फिर आप लोग डाउट सॉल्विंग में लेना. क्वेश्चन नंबर 30, टिपिकल एसएटी क्वेश्चन, वेरी वेरी हाई लाइकलीहुड कि ऐसा एक क्वेश्चन आए. करो. 3030. Based on the design and result of the study, which of the following is an appropriate conclusion? 30. Absolutely right है यार. Yes, Arushi, correct. Kalip, correct. Shreya Jain, correct. दो ऑप्शंस हैं बस जहां पे कंफ्यूजन होता है. यक्ष करेक्ट. रेवती करेक्ट. आरुषि करेक्ट. कृष्णा करेक्ट. वो कहाँ है? आरवा हुजा इसमें है क्लास में? नहीं है. Correct. Answer is option A. Let me know if you need discussion. मैं एक और सवाल करूंगा and then we'll close it. Anyone who want me to discuss this? Answer is option A. No one. So आखिरी सवाल for the day is, मैं ढूंढता हूं तुम लोगों के लिए. Question number, SAT challenge question number 3. ये जो क्वेश्चन है ये सनफ्लावर वाला क्वेश्चन है. सनफ्लावर प्लांट, मीडियन सनफ्लावर हाइट इन इंचेस, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक क्वेश्चन. ये वाला करना है भैया आप लोगों को. मेरे इसमें ये 3 है, आपके उसमें क्या है वो आप देखो, एंड आई वांट यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ा तो फास्ट होगा वो. Sir, I cannot find it. रुको दिखाता हूं मैं. ये शायद कुछ और नाम से होगा तुम्हारे उसमें. ये है क्या आप लोगों के पास? सनफ्लावर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन है. 3rd 4th 2 लेवल पे. नहीं सर, नहीं No, है. we don't have this question. Okay, so we skip. लास्ट क्वेश्चन इसको बनाते हैं. ये है सैट चैलेंज क्वेश्चन 4 है ये मेरे पास.
इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वाला कुछ क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. नहीं, इन फ्लाइट नहीं, फ्लाइट अराइवल ये है. सर थर्ड Yes, sir, this क्वेश्चन है question is मेरे there. में. थर्ड क्वेश्चन है. हाँ, तो ये थर्ड क्वेश्चन करो. सैड चैलेंज क्वेश्चन 3. वाओ, करेक्ट. बहुत फास्ट किया भाई आप लोगों ने. फैंटास्टिक. यस, एवरीबडी जिसने भी अभी तक आंसर भेजा है करेक्ट है. करेक्ट. वाह वाह वाह, गुड. आंसर इज ऑप्शन सी. एंड रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क. गुड. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. दिस इज पक्का लास्ट क्वेश्चन. अब ऐसा नहीं है कि आप लोग समय लगा दो, मैं पक्का बोल रहा हूँ ये लास्ट क्वेश्चन ही है. सैड चैलेंज क्वेश्चन मेरा 5 है, आपका देख लो क्या है. अमेरिकन अडल्ट्स एयरलाइन इन फ्लाइट कॉल्स वाला क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन नंबर है ये आयान आपके बुक में? सर सैड चैलेंज क्वेश्चन 4 है ये. 4. आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. करेक्ट अयान. कैलेब बिल्कुल सही. करेक्ट श्रेयांश जैन. दिस इज गुड. Which of the following is most likely to be equal to percentage of all American adults who would say that airlines should have in-flight calls? Correct. Yes, overwhelmingly correct. सभी का correct है. And this time reward of good work is no work but play. तो मैं इसको stop कर रहा हूँ. Let me know if you want me to solve this. Otherwise, we are done. My best wishes for your SAT August attempt. Do take advantage of extra doubt solving on request और एक planned होगा जो आपको श्रुति मैडम बता देंगे. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye. Sir, I actually had a question.